Hello students, now I am going to continue with the chapter Integration of 12th standard. Exercise 3.2a, question number 2. So the question is integrate the following. The first example is integration of cos 3x minus cos 4x upon sin 3x plus sin 4x. So for solving this type of examples, you have to know the formulas that you learn in 11th standard. That is sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. So this is the formula for sin c plus sin d. Next one, in this example there is a cos c minus cos d. So I'm just going to write this only two formulas. So cos c minus cos d, that is 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. So remember this one, for cos c minus cos d the formula is 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. And I'm going to apply this formula in this example, as well as you know that is the minus angle of cos is always positive, that is cos of minus theta is always a cos theta, that is positive angle. So in this example we are going to apply this formula, that is cos c minus cos d. So what is the formula? 2 sin c plus d upon 2 means what? So 2 sin, so this one is c and this one is d. तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3x plus 4x upon 2, that is 3 plus 4, that is 7x upon 2 into the second part is, that is sin d minus c upon 2. So sin, so this one is d. So here we consider that is this part is c and this part is d. So d minus c मतलब 4x minus 3x, so we get here only x upon 2. So keep in mind how these numbers came, that is 7x upon 2 कैसे आया है, x by 2 कैसे आया है, तो यहाँ पे हमने ये formula use किया है. After that we are going to put down the formula for sin c plus sin d. So what is the formula? That is 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. So 2 sin c plus d, that is 3x plus 4x, so we get here 7x by 2 into cos c minus d, so 3x minus 4x, that is minus x upon 2. यहाँ पे sin 7x by 2 is cancelled with this sin 7x by 2, 2 will get cancelled. So finally we get here sin x by 2 upon. Now see, this angle is negative and cos of negative angle is always positive. I just write here the formula, that is cos of minus theta is equals to cos theta. So cos of minus x by 2 is always cos plus x by 2. So यहाँ पे हमें मिला sin x by 2 upon cos x by 2. Since the angles are similar, we get here that is sin upon cos is nothing but tan. So integration of tan x by 2 d, and we already learned the formula for tan, that is integration of tan x is equals to log of sec x. बट यहाँ पे जो x है वो in the form of x by 2, तो हम यहाँ पे x by 2 लिखेंगे. और अगर x छोड़ के अगर कोई भी फॉर्म में थीटा रहता है तो उसका हम डेरिवेटिव निकाल के जो आंसर आता है उससे हम डिवाइड करते हैं. तो x by 2 के फॉर्म में ये है, मतलब यहाँ पे हाफ x है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो हाफ है, तो जो हाफ है मतलब यहाँ इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा वो क्या निकलेगा, दैट इज हाफ, एंड जो हाफ है वो हाफ से हम इसको डिवाइड करेंगे. सो द आंसर इज लॉग ऑफ सेक x by 2 अपॉन हाफ प्लस c. So you can use a mod also. Now see the second example. Now see in second example यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे, दैट इज साइन a प्लस बी, ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. दैट इज साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. एंड अगर ये माइनस भी होता है, आपको पता है ये, 1 मिनट, अगर ये माइनस भी होता है, दैट इज साइन a माइनस बी भी होता है, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी. नाउ सी द सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज कॉस a प्लस बी, तो उसका जो फॉर्मूला है वो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी. अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम साइन माइनस देते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे साइन प्लस आता है, सिर्फ साइन चेंज होता है. नाउ इन दिस एग्जाम्पल वी गोइंग टू यूज दिस टू फॉर्मूलाज.
So first we going to adjust the denominator in the numerator. तो ये जो एंगल है नीचे x माइनस ए, वो एंगल हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे. मतलब क्या करेंगे, ये x माइनस ए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x चाहिए. मतलब ये a कैंसिल होना चाहिए, तो मैंने प्लस a करके वहाँ पे लिख दिया. सो माइनस ए इज कैंसिल विद दिस प्लस ए एंड वी गेट ओनली x. तो cos x को हमने इस फॉर्म में लिखा है, दैट इज x माइनस ए प्लस बी. तो ये x माइनस ए जो है इसके लिए हम a कंसिडर करेंगे और ये सिंगल a जो है उसको हम b कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हमने जो स्टेप की है इसको मैंने लिखा है, दैट इज एडजस्टिंग द डिनोमिनेटर. मतलब जो डिनोमिनेटर है वो मैंने न्यूमरेटर में एडजस्ट किया है. नाउ वी गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर cos a प्लस b. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, आई ऑलरेडी राइट हियर, दैट इज cos a प्लस b, मतलब cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज cos a, ये a है, दिखाई दे रहा है आपको, साइन ऐसा फ्रंट मैंने a लिखा है यहाँ पे. सो cos a इंटू cos b, दैट इज a, माइनस sin a क्या है, x माइनस a इंटू sin b. सो b क्या है यहाँ पे, स्मॉल a, अपॉन द डिनोमिनेटर इज एज इट इज एंड dx. नाउ वी गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर. सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो हम इसको भी देंगे और इसको भी देंगे और दोनों को सेपरेट करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट दैट इज cos x माइनस a इंटू cos a अपॉन sin x माइनस a dx. वी गोइंग टू सेपरेट दैट ईच टर्म एंड ये भी हम सेपरेट करेंगे, बीच में साइन है माइनस. इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस a इंटू sin a अपॉन sin x माइनस a. ये जो डिनोमिनेटर है वो हमने यहाँ पर भी दे दिया और यहाँ पर भी दे दिया. तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, sin x माइनस a इज कैंसिल विद दिस sin x माइनस a. सो सी द रिमेनिंग टर्म्स जो यहाँ पे बैलेंस है, ये दोनों एंगल सेम है, x माइनस a x माइनस a. सो फॉर दिस वी कैन राइट दैट इज cos अपॉन sin इज नथिंग बट cot x माइनस a, cos a एज इट इज. एंड यहाँ पे जो बैलेंस है वो है sin a. तो x छोड़ के यहाँ पे जो भी है सिंगल तो वो है कांस्टेंट. तो cos a कांस्टेंट है, sin a भी कांस्टेंट है. ये नहीं हो सकता बिकॉज इसके साथ x भी है. अगर सिंगल ऐसा a आपको दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट x, देन इट इज़ अ कांस्टेंट. So I is equals to be taking this constant outside, integration of cot x minus a dx minus sin a integration of 1 dx. यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. Now cos a is as it is and now we're going to apply the formula of cot x. So cot x, so what is the integration of cot x? It is log of sin x. But x यहाँ पे कौन है, x minus a minus sin a is as it is and integration of 1 is x. Now just we going to rearrange the terms. So cos a log of sin x minus a, यहाँ पे हम इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 है और इसका 0 है, उससे हम डिवाइड करते हैं. सो 1 है इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है. लॉग ऑफ sin x माइनस ए, ये जो x मैंने बाद में लिखा है वो मैंने sin के आगे लिखा है, x sin a प्लस c. सो दिस इज द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. Question number 2, example number 2nd, and example number 3rd is same that of the example number 2nd. So this third example is for your homework and I'm going to start with the example number 4. Now see the example number 4. It is again integration of 1 upon sin x into cos x plus 2 cos square x dx. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे cos x है और यहाँ पे cos square x है, बट आई एम गोइंग टू टेक द cos square x एज अ कॉमन. आपको लगता होगा कि cos x मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम cos x लेते हैं तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. सो इसलिए cos square x इज कॉमन हियर. सो 1 अपॉन cos square x इन ब्रैकेट, तो sin x इंटू cos x है, ब्रैकेट में यहाँ पे जो है वो cos x है लेकिन मैंने cos square x यहाँ पे कॉमन लिया है. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस टर्म लाइक दिस वे, दैट इज sin x अपॉन cos x. तो हमने किया है वो करेक्ट है या नहीं कैसे हम देखेंगे, दैट इज sin x अपॉन cos x, और इससे जो मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे वो कौन है, दैट इज cos square x. सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय cos square x, so 1 cos x cancel with this cos x and we get sin x into cos x, that is this term. So 1 upon cos square x मैंने
यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आएगा sin x अपॉन cos x, और यहाँ पे क्या होगा बैलेंस, सिर्फ 2 होगा। तो ये एडजस्टमेंट हमने क्यों की है, तो एक स्टेप होने के बाद आपको ये ध्यान में आएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज़ नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स, तो मैंने सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखा, एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब tan x प्लस 2। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ tan x, इट इज़ सेक्स स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2, इट इज़ 0। मतलब जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ x। सो इट बिकम्स वेरी इजी। नाउ ओनली वन स्टेप आंसर इज देयर, मतलब ये जो है उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिला है, तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे लिखा, दैट इज tan x प्लस 2 एंड न्यूमरेटर में d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस 2। तो ये जो है उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स, एंड सो द आंसर इज log ऑफ द डिनोमिनेटर, सो log ऑफ tan x प्लस 2 प्लस c। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। तो ये cos स्क्वायर एक्स जो मैंने कॉमन किया, ये स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ये आप लेते हो तभी आपको ये आंसर मिल जाता है, दैट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2, एंड यहाँ पे हमें वो जो फंक्शन मिला है उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिलता है। सो नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 5, I is equals to integration of sin x plus 2 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x. Now from this example, that is from example number 5 onwards, there is one pattern, and we have to use this pattern to solve the examples. So what is the pattern? So you have to keep in mind, that is हमें न्यूमरेटर का आंसर मतलब न्यूमरेटर के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है, और न्यूमरेटर के लिए हम जो फॉर्मूला जो पैटर्न ध्यान में रखने वाले हैं वो है, दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, ये NUM इज फॉर न्यूमरेटर, इज इक्वल्स टू A इज अ कांस्टेंट, A एंड B द कांस्टेंट इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर प्लस B इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज द फॉर्मूला और पैटर्न, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब न्यूमरेटर हम कैसे रिप्लेस करने वाले हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज A इंटू डिनोमिनेटर प्लस B इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला और ये पैटर्न यूज़ करके ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आप ये पैटर्न नहीं करते हो तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होगा। सो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू A इंटू डिनोमिनेटर प्लस B इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर आपको दिखाई दे रहा है वो हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो मैंने न्यूमरेटर को यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखती हूँ, तो आपको न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज साइन एक्स प्लस 2 cos x इज इक्वल्स टू, तो हम कैसे लिखने वाले हैं, A इंटू डिनोमिनेटर, तो मैंने A लिख दिया, और ये जो डिनोमिनेटर दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस B वैसे ही लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन डिनोमिनेटर। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही हमें यहाँ पे अभी लिखना है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये पैटर्न जो है, इसी तरह से हमने ये यहाँ पे लिखा है, दैट इज न्यूमरेटर दैट इज साइन एक्स प्लस 2 cos x, मैंने यहाँ पे लिखा A इज़ एज इट इज़ इंटू डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस B इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब हम ये सॉल्व करेंगे, मतलब A और B की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B वी हैव टू पुट डाउन दिस टर्म, मतलब ये जो मैंने राइट साइड को जो भी लिखा है वो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को रिप्लेस करके, मतलब इसकी जगह पे हमें ये यहाँ पे लिखना है आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हम A एंड B को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, तो हम देखते हैं आगे। ये न्यूमरेटर इज एज इट इज, जस्ट वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय दिस A, तो हमें क्या मिलेगा, 3A sin x प्लस 4A cos x। तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो हो गया, प्लस B in bracket, so we have to write down the derivative of this bracket. So 3 sin x, so 3 the derivative of sin x is cos x minus 4, माइनस क्यों है, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स, तो मैंने पहले से यहाँ पे माइनस साइन दे दिया, 4 इज एज इट इज़ एंड इसका आंसर है साइन एक्स। तो यहाँ पे मैंने इसका जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। सो B 3 cos x माइनस 4 sin x।
इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जैसे मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो इस ब्रैकेट को मैं b से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे 3b आएगा और फिर यहाँ पे 4b आएगा, बाकी सब सेम ही होगा। तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ एंड यहाँ पे 3b cos x माइनस 4b sin x यहाँ पे आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये लेफ्ट साइड एज इट इज़ है, यहाँ पे जो sin x वाले टर्म है वो 2 है, तो मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे sin x है और यहाँ पर भी sin x है, तो इन दोनों में से मैंने sin x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे sin x कॉमन आया, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, दैट इज़ 3a माइनस 4b, सो 3a माइनस 4b sin x एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर cos x, सो cos x इज एज इट इज़ इन ब्रैकेट 4a प्लस 3b, तो 4a प्लस 3b यहाँ पे हो गया एंड इट इज़ cos x। एंड नाउ वी गोइंग टू इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम अभी इक्वेट करने वाले हैं। मतलब क्या है, बीच में इक्वल टू साइन है, मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो साइन एक्स का कोएफिशिएंट है तो और यहाँ पे जो साइन एक्स है वहाँ पर उसका जो कोएफिशिएंट है वो हम इक्वेट करेंगे। सो हमें क्या मिला, 3a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। By equating the coefficients on both sides, just we have to see the sin x on both sides and just equate the coefficients. So 3a minus 4b is equals to 1. After that the coefficients of cos x, that is 4a plus 3b, यहाँ पे cos x का जो coefficient है वो है 2, so 4a plus 3b is equals to 2. तो ये 2 equations हमें मिल गए। So after that we going to solve it just by simultaneous equation method. तो हम 8th स्टैंडर्ड में नहीं 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड में भी जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, जस्ट आई एम गोइंग टू cancel this b, so we are going to multiply this by 3 and this by 4. Just I am exchanging the coefficients of both एंड यहाँ पे हमें क्या मिला, दैट इज़ 4 3s are 12 एंड यहाँ पर भी 4 3s are 12, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, यहाँ पे 4 4s are 16 एंड 4 2s are 8। सो हर एक टर्म को मैंने 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस 12b विल गेट कैंसल माइनस प्लस, सो 9 प्लस 16 वी गेट हियर 25a इज इक्वल्स टू 11 एंड सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ 11/25। तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट डाउन करने वाली है करना है वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दिस 2 इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। तो मैंने एक इक्वेशन यहाँ से ले लिया, दैट इज़ 3a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ 11/25, तो मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 11 3s are 33/25 माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। Now we shift this 4b to this side and 1 to this side, so 4b प्लस होगा और ये माइनस होगा, 33/25 minus 1 is equals to 4b, so 4b is equals to 25, denominator is as it is, take cross, so 33 minus 25 and finally यहाँ पे हमें मिल गया 8/25 एंड ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा, सो 4 2s are 8, सो फाइनली वी गेट 2/25, सो द वैल्यू ऑफ b इज 2/25। सी दिस वैल्यू a इज 11/25 एंड b इज 2/25 एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू इन द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे मैंने ये लेट लिखा था और ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। तो ये सब मैं इसको रिमूव करके एग्जाम्पल में ये लिखने वाली हूँ और पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो सी द नेक्स्ट स्टेप, so I is equals to integration of a that is 11/25, डिनोमिनेटर था 3 sin x plus 4 cos x प्लस b का वैल्यू था 2/25 d/dx ऑफ अगेन डिनोमिनेटर, मतलब यही है हमें लिखना है और डिनोमिनेटर में ये मतलब ये तीनों ही ब्रैकेट सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर फॉर ईच टर्म, तो इसको भी हम ये डिनोमिनेटर देंगे और इसको भी देंगे एंड साइड बाय साइड हम उनको सेपरेट भी करेंगे। तो 11/25 इज अ कांस्टेंट, सो वी टेकिंग इट आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x plus 4 cos x अपॉन 3 sin x plus 4 cos x dx प्लस 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x plus 4 cos x एंड d/dx ऑफ, मतलब इसका ही जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे है एंड dx।
तो मैंने ये ऐसा ही लिखा है. You know the formula for this one, that is integration of f dash x upon f of x is nothing but log of f of x. तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है टोटल वो यहाँ पे कैंसिल होगा. सो हमें मिला यहाँ पे 1. सो 11/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल्स टू 2/25 log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c1. c1 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने सिर्फ इसका ही इंटीग्रेशन निकाला है, तो इसके लिए मैंने इस यहाँ पे c1 लिखा है. तो इसका मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन यहाँ पे ले लिया. अभी हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है. सो 11/25 इसका इंटीग्रेशन है x. यहाँ पे जो c हम लिखने वाले थे तो c2 है ऐसा हमने कंसिडर किया, वो c1 एंड c2 करके एक ही बार मैंने c यहाँ पे लिख दिया और ये टर्म एज इट इज़. तो देख लो आप ये पैटर्न थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे. I इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2 cos x. तो मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके a एंड b का वैल्यू हमने पुट डाउन किया और आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हियर वी जस्ट गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मैंने हर एक को दिया. ये जो आता है वो एज यूजुअल द पैटर्न दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x के पैटर्न में ये आता है. एंड ये दो कैंसिल ही होता है तो इसका आंसर 1 आता है, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सेम पैटर्न का जो एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 6. आगे के जो एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 6, 7, 8, 9 दे आर ऑफ सेम पैटर्न. So just we will see these examples in the next lecture. Thank you.